Now we are continuing the trigonometry with one more type of problem. As you can see the question on board, cosecant minus cot whole square is equals to 1 minus cos by 1 plus cos थीटा. देखिए स्टूडेंट, आपको LHS ये दे दिया गया है, कोसेकेंड माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. इसको लेकर आप प्रूफ करिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप RHS को लेके LHS को भी कर सकते. तो थोड़े चीज़ों का ख्याल रखिए, आप LHS लेके RHS प्रूफ कीजिए, और ऐसा आप RHS लेके LHS को भी प्रूफ कर सकते. लेकिन प्रूफ करते खुद यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको, यहाँ पे जो LHS लेके आप RHS को प्रूफ कर रहे हैं, इसके दो टाइप के प्रूफ कर सकते हैं आप. एक किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि आप इसको ओपन कर दीजिए पूरा, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से ओपन करके आपको इसको क्या बोलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप. वंस यू हैव ओपन विद द हेल्प ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, आफ्टर ओपनिंग दिस यू नीड टू कंटिन्यू दी स्टेप्स, और एल्स rather than opening the term using a plus b whole square, just you can put cosecant formula, cot formula. Okay, as you can see that cosecant formula is 1 by sin and cot formula is 1 by tan, but again you need to change this 1 by tan into like sin by cos. So I will tell you how to do the. Okay student, you might have said that sir you are saying 2-3 types of thing and you are confusing us. Student, I am not confusing you, just I want to show the procedures how the problem can solve. It has many type of steps and many types of procedure to solve these. So either you can take LHS and prove RHS, or else either you can take RHS, you can prove LHS. In LHS also you can directly open with the help of a plus b whole square formula or something else. Now don't confuse, now follow one procedure, just the procedure which I will going to tell you. You need to just practice this 3 to 4 times, you will be thorough in this. Now look at carefully. Now I am writing like given. Okay, what is given here? LHS. What is LHS here? LHS is equals to cosecant theta minus cot theta whole square. So in place of cosecant, what I am doing, student, 1 by sin I am writing. Okay, and in place of cot theta I am writing 1 by tan theta, as you can see on board. Now again this 1 by sin theta minus it's become like 1 by sin theta by cos theta. How it's become? Now here you need to write the terms like since cosecant theta is equals to 1 by sin theta, this is one term, and cot theta is equals to 1 by tan theta, you need to write here in rough column. Now here since tan theta, what is tan theta? Tan theta is equals to sin theta by cos theta. Student, I am once again telling you, don't be confused, just you need to apply few formulas to get the answers. Need not to confuse, you need to practice 3 to 4 times, you will be thoroughly. Now I wrote like 1 plus sin theta in place of cosecant theta, 1 by tan theta in place of cot theta. After that 1 by sin theta is as it is minus 1 by, in place of tan theta I wrote sin theta by cos theta, sin tan theta is equals to sin theta by cos theta. यहाँ तक आपको समझने आ रहा होगा स्टूडेंट कि मैंने सिर्फ फार्मूले की हेल्प से स्टेप्स को चेंज करता रहा. जैसा कि फर्स्ट कोसेकेंड की बदल मैंने 1 बाई साइन लिखा और कॉट की बदल 1 बाई टैन थीटा लिखा. होल स्क्वायर तो जैसा कि वैसी है, माइनस साइन भी जैसी थी वैसी है. फिर 1 बाई साइन थीटा अपनी जगह पे एज इट इज है. यहाँ पे 1 बाई टैन थीटा की प्लेस पे मैंने साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा. ठीक है, क्योंकि टैन थीटा का फार्मूला आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है. नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, ये 1 बाई साइन थीटा तो एज इट इज जैसा था वैसा हो गया. ये बन गया आपको कॉस थीटा बाई साइन थीटा. अब ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा कैसा बना स्टूडेंट, देखिए लुक एट हियर. ये आपको होल स्क्वायर में लिखूंगा जैसा था वैसा. ये आपको कैसा बना देखिए, ये जो कॉस थीटा होता फोर्थ फ्रैक्शन में ऊपर की तरफ चले जाएगा तो कॉस बाई साइन बन गया. नेक्स्ट स्टेप अपन देखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा. अब ये साइन थीटा ऐसा कैसा आ गया सर बोलते हैं आप, तो ऐसा कैसा आ गया, तो देखिए डिनोमिनेटर आपको सेम है. न्यूमरेटर में अगर मैं साइन थीटा इधर भेजूंगा, साइन बाई साइन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. फिर यहाँ पे साइन थीटा यहाँ से यहाँ भेजूंगा, साइन बाई साइन क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा. तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर को सिर्फ कॉमन कर लिया है, साइन थीटा ले लिया है. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट. नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ देखिए आप गौर से, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा. अरे सर ये 1 प्लस कॉस थीटा कहाँ से ला लिए जी, सताओ नको हमारे को. ठीक है, नाउ यू कैन सी स्टूडेंट, ये स्टेप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया. यहाँ पे साइन थीटा की प्लेस पे मैंने 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया. क्यों लिखा,
अभी बता, ओके ये स्टेप को थोड़ा हम आगे इवॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे, ये स्टेप को ये जैसे का वैसे ही रखेंगे। ये स्टेप को देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जो होल स्क्वायर था इसको मैं बांट दिया, ये 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब ये स्टेप यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आई थिंक यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, पहले यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख लिया बाई साइन स्क्वायर थीटा लिखा। यहाँ तक आप लोग कॉपी करिए आगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई, इसको मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख लिया था इसको, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसा हुआ मैं बताता हूँ, देखिए सिंस हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मेरे को साइन थीटा चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली 1, ओके। इन प्लेस ऑफ मेरे को साइन थीटा की प्लेस को चेंज करना है, साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे को यहाँ पे भी आई थिंक इसको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आगे देखेंगे हम कैसा कर रहे हैं। अब लुक एट हियर, ये हम इसको नाउ यू कैन सी हियर, इसको आप एक सेकंड के लिए मैं ये स्टेप को ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट में, ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख रहा हूँ मैं। कई को लिख रहा हूँ, अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर जो रहता है हम उसको हम ए इंटू ए लिख सकते, ठीक है। वैसी चीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर थीटा है यहाँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मैं यहाँ लिख सकता। अब ये स्टेप देखिए, इसको एक सेकंड के लिए आप स्क्वायर कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि 1 और 1 स्क्वायर सेम रहता है, तो आप इसको एक सेकंड के लिए 1 स्क्वायर कंसीडर कर ले। तो करने पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसा कि आपको मालूम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले की मदद से हमको क्या करना है, ओपन करना है। यहाँ पे a यानी कि 1 हो गया, तो मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस b हो गया कॉस थीटा, तो कॉस लिख दिया मैंने, इंटू फिर यहाँ पे अगेन a क्या हो गया 1 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये स्टेप आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, मैं वंस अगेन समझा रहा हूँ। 1 जो है अपना ए स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी, ये फॉर्मूले का हम उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली इसका इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए स्क्वायर की जगह पे आप कंसिडर कर लीजिए 1 स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह पे आप कंसीडर कर लीजिए, यहाँ जो लेफ्ट फिंगर के पास दिख रहा है आपको कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये स्टेप आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड विद द स्टेप। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा गेट कैंसल, अभी आपको बच गया आंसर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हमको यही प्रूफ करना था ना, विच इज इक्वल्स टू RHS, hence proof. Okay, now we are solving one more type of problem. As you can see the question on board student, that is under root of 1 plus sin a by 1 minus sin a is equals second a plus tan a। यानी कि सवाल ये है कि अंडर रूट ऑफ आपको 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए दिया है, इसको LHS को लेकर आपको RHS प्रूफ करना है। LHS में आपको क्या प्रूफ करना है, सेकेंड ए प्लस tan a प्रूफ करना है। तो ये आपका सवाल हो गया क्वेश्चन। वन मोर थिंग इज, आप चाहे तो सेकेंड ए प्लस टैन ए लेकर के 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए अंडर रूट भी प्रूफ कर सकते, लेकिन ये एक अलग चीज़ है। नाउ यू नीड टू गो टू the procedure as follows. Okay, you can see first I am writing here as given. Student, you can see that given is LHS, and in LHS what it is given, under root of 1 plus sin a by 1 minus sin a. Okay, as you can see this is an our LHS. Now what I am doing, rationalizing the denominator. Just I am rationalizing denominator with, हमको denominator करना है like 1 plus sin a से हम इसको rationalize करेंगे. The step becomes under root of, as you can see here, under root of 1 plus sin a by 1 minus sin a into 1 plus sin a by 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे मैंने रेशनलाइज किया है स्टूडेंट, डोंट बी कंफ्यूज, कि मैंने 1 प्लस साइन ए की मदद से पूरे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम डूइंग, एज यू कैन सी हियर, स्टेप नेक्स्ट स्टेप एज आई कैन राइट इज एज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। व्हाई आई एम राइटिंग 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, like you know that a into a is nothing but a square. Here 1 plus sin a into 1 plus sin a whole square it's become. Next step I am writing this as 1 square minus
sin square a. Why I am writing like 1 square minus sin square a? Okay, as you can see that, look at here, since we have one formula like a plus b into a minus b is equals to a square minus b square, जैसा कि हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स में कर रहे थे स्टूडेंट, उसी की मदद से यहाँ पे a हमारे पास 1 है, b साइन है, तो यहाँ पे a प्लस बी है ना, तो यहाँ पे इसको आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करना हो, फार्मूला तो सेम होता, तो डोंट कन्फ्यूज सर, यहाँ पे तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है, बल्कि ऐसा कन्फ्यूज मत होइए। तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टीटा। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बाई ये बन जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्यों बन गया, यहाँ पे आप स्टेप देख सकते हैं, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा किसके बराबर हो गया, जस्ट आई एम जस्ट placing cos square theta as it is here, 1 also as it, just putting the sin square theta on the RHS, so it become minus sin square theta। ये कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी की मदद से हमने किया है, तो यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है स्टूडेंट। नाउ कॉपी डाउन टिल हियर। नाउ अभी आप स्टूडेंट ये देखिए, ये 1 प्लस साइन ए हो गया, ठीक है, बाई कॉस ए, ठीक है, तो मैं इसको ये ऐसा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर में है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये कॉस स्क्वायर ए है, ये स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही अपनी जगह पे कैंसिल। अब अपने पास बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए बच गया है, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ये कैसा हुआ देखिए, अगर आपके पास a प्लस बी बाई बी है तो आप इसको कैसा लिखेंगे, a बाई बी लिखेंगे प्लस b बाई बी लिखेंगे, यानी कि b दोनों के लिए भी आपको रहेगा, तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द स्टेप लाइक दिस। ओके, नाउ 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 साइन ए बाई कॉस ए, जैसा कि आप जानते हो 1 बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, कमॉन सेकंड का फॉर्मूला है, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ सेकंड ए, प्लस साइन ए बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए आप tan ए, तो ये लिख दिया है मैंने tan a which is equal to RHS which is hence proof। आपको करना क्या है, ये प्रॉब्लम को कॉपी करना है, 3-4 टाइम प्रैक्टिस करना है, you will thorough, okay, do this, copy down this। Now student, with this our chapter trigonometry done, okay, now I will going to place few problems with solutions on your screen, you need to copy down that problems, you need to understand and practice 3 to 4 times। Apart from this, I'd like to say something about in our mathematics reader we have many problems related to like try to do, try this, do this type of problem also you need to do by your own। okay, आपको देखिए आपके रीडर में कुछ ब्लॉक्स बने हुए रहेंगे, जो येलो कलर के बॉक्स और ब्लू कलर के बॉक्स में रहेंगे, वो ब्लॉक्स में रहेगा ट्राई दिस, डू दिस, वो प्रॉब्लम आपको अपने से करना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। थोड़े एग्जाम्पल्स आप अपने रीडर्स में से कीजिए, थोड़े सॉल्व प्रॉब्लम मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, आप पॉज करिए अपने वीडियो को, आप कॉपी करके आप आगे कर सकते। सो आवर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th completed। okay, now we will going to summarize about this chapter। now summarize, थोड़ा सा देखिए, जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बोला हूँ वो प्रॉब्लम्स में आपको ये जो समरी होती ना, हमारी समरी होती, उसके बाद आपके बोर्ड पे आपके स्क्रीन पे ये प्रॉब्लम्स दिखे। तो देखिए पहला चीज़ जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो आपको ये बताना चाहूँगा, डेफिनेशन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री द स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री इज एन मैथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है, रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के जो साइड्स और एंगल के रिलेशंस मालूम करता है। सब में पहले वो चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से मैं ये कॉपी कर लिया आप हो। नेक्स्ट चीज़, ट्रिग्नोमेट्री हमारी हमेशा अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम डील्स विथ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपको इस तरीके का होता है, या फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ओके, ठीक है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल आप और एक टाइप का भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ये पूरे राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपको आएंगे। और यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 साइंस होते हैं, साइन, कॉस, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, टैन, कॉट, ओके, सेकंड, कोसेकंड, ये 6 हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस है। और इसके ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास फॉर्मूलेस रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइन टीटा ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस है, कॉस टीटा एडजेसेंट बाई
hypotenuse tan theta sin theta by cos theta which is equal to opposite by adjacent। वैसे ही cot secant और कोसेकेंड के भी फॉर्मूलेस आपके पास रखे हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है वो भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी आपके ट्रिग्नोमेट्रीज के आइडेंटिटीज है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट टेबल आता है। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑलरेडी मैंने समझा दिया था कि जो है साइन 30 डिग्री, ओके, लाइक टैन 45 डिग्री, ओके, सेकेंड 60 डिग्री, दिस टाइप ऑफ थिंग्स ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। तो अभी हमको ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, उसका डेफिनेशन किस चीज़ से डील कर सकता, दैट इज वेरी मोस्ट ऑफ द टाइम वो राइट एंगल ट्राइंगल से ही डील करेगा। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज है, उसके कुछ अपने फॉर्मूलेस है, उसके आइडेंटिटीज है, उसके कुछ वैल्यूज है, लाइक साइन 30 टैन 45 सेकेंड, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया, जस्ट आप गो थ्रू के लिए ये आपको समझना। इससे रिलेटेड हमारे पास पूरे ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स है, ये है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट के, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलेस भी यूज होते हैं। वो अलजेब्रिक फॉर्मूलेस जैसा कि आप जान सकते, एक फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का है, अक्सर यूज होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फॉर्मूला हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का है जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये यूज होगा। और एक फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले यूजुअली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अलजेब्रा का थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री को लेके यही आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ट्रिग्नोमेट्री को लेके आपको जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स रीडर में दिए हुआ है वो आप सॉल्व करना है अपने से। और एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.3 एंड एक्सरसाइज 11.4 मैंने सॉल्व कराया था। लेकिन एक्सरसाइज 11.4 के प्रॉब्लम्स मैंने अभी सॉल्व नहीं कराए थे, लेकिन वो प्रॉब्लम्स मैं आपको सोल्यूशन के साथ आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देख सकते। So ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री को लेके टॉपिक है। सो दिस इज अबाउट अवर ट्रिग्नोमेट्री, ओके। नाउ वन मोर थिंग I'd like to suggest, it's my suggestion to you that you need to study trigonometry and application of trigonometry together. So if you are studying these 2 chapters together, means what will be the benefit? The first benefit is you will understand the complete, that is subject related to the trigonometry of our 10th, one thing. Second thing is if you study these 2 chapters together, you will get more marks in your examination. Like from trigonometry and application of trigonometry, you will get nearly 4 marks 3 problems, that is 12, and 2 marks nearly 3 problem, that is 6, and 1 marks nearly 2 problem, which is equal to 2. Apart from this, in objective you will get like 2 to 4, like about in objective roughly 2 marks. So total you can see student here 12, 6, 18, 19, 20, around 20 or 22 marks you will get from trigonometry and applications of trigonometry. So you need to know this is an important, and this is what out of 40 marks, that is 20 is out of 40 marks, as you can see. That means nearly 50% of paper you can, not nearly, exactly you can solve 50% of paper with the help of trigonometry. So this is our trigonometry plus application of trigonometry. So this is the important of these 2 chapters, trigonometry and application of trigonometry. Try to solve more and more problem related to the trigonometry, and application of trigonometry is your next topics will going to take by me or by any other lecturer, okay, any other lecturer. As of now you need to thorough with the chapter trigonometry, okay. That's all about our trigonometry. Have a great day.